मैं तेरे लिए क्लिप प्ले कर रहा हूँ. I want your reaction because like you are a former Muslim. I know you hate being called even that now. I don't even I care. know I don't that. use that. I don't even Yeah, use yeah, that. It just comes happen. yeah. But ये सुन, ये क्या बोल रही है, और उसके बाद मैं वो एक क्लिप प्ले करना चाहता हूँ दूसरी. जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है, छोटा सा मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, बस इतना सा ही मतलब है. मतलब ये इतना आसान सा वर्ड है कि इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि यार वो मुझे लड़की बहुत पसंद है लेकिन उसका मोबाइल नंबर जो है वो ढूंढना एक जिहाद है. अभी ये जो लेडी है, देख मुझे मालूम है तू टॉर्चर हो रहा है, मगर हो थोड़ा सा. और अभी ये जो तू इस्लामिक स्कॉलर की बात कर रहा है ना, मेरी तो सच्ची बोले मेरी तो गांड फट गई इसकी सुन के. बहनचोद ऑस्ट्रेलिया में बैठे पढ़ा रहा है. ये इसी की बात कर माई रहा था मैं. अवा, इसी की बात ये कर रहा था मैं. ये माई अवा, ये ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पढ़ा रहा है. ये सुनो. We can't take away from the fact, first and foremost, that jihad is definitely part of our deen. And as Muslims, we should never ever shy away from this. And yes, there may be types of jihad, but of the peak of this jihad is that which the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke about, and I'll read the hadith soon. And that is fighting in the path of Allah Azza wa Jal. A physical fight, not the fighting of the nafs. Although your nafs is needed in order for your physical to go out in the path of Allah. So we're not talking about the struggle of the nafs, we're talking about the physical jihad, the physical struggling against the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala in order to make the word of Allah Azza wa Jal the highest. Allah subhanahu wa ta'ala, He says to, which means not equal are those believers remaining at home other than the disabled and the mujahideen who strive and fight in the cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred the mujahideen through their wealth and their lives. And for those who remain behind by degrees. And to both Allah has promised the best reward. But Allah has preferred the mujahideen over those who remain with a great reward. So here Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds, the creator of everything, is telling us who He prefers. And Allah Azza wa Jal prefers those who go out and fight in His path, and He prefers them over those who sit idle. So their rank with Allah subhanahu wa ta'ala is greater than us who are sitting idle. Or in that case, anyone who is sitting idle. Their status with Allah subhanahu wa ta'ala is different than those who are sitting. Although there is also good in those who are sitting. Each of them has the reward. But Allah Azza wa Jalla is saying that He has preferred those who go out in His path, in jihad fi sabilillah, He's preferred them above those who sit idle. ओए ए माई अवे नु कोई फाइबर फूबर खिलाओ की करन दे है. ये जो वीडियो तूने चलाई ये वायरल हुई है ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया पे कि इनको पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है. इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है. आप इनको जब एक दो को निकालेंगे ना, इनका सिटीजनशिप कैंसिल करके, मैं आपको बता रहा हूँ ये इनका बाप भी कहेगा यार पेज ताड़ा इस्लाम, हमें इस्लाम से कोई मतलब नहीं है. ये जो तकबीर अल्लाह अकबर के जो नारे लगाते हैं, ये लगाते हैं इसलिए क्योंकि गोरे उल्लू के पट्टे हैं. ये इनको कुछ कहते नहीं है, ये कहते हैं फ्री स्पीच है. अपने गोरे को नाजी की सलूट पे पकड़ के अंदर कर देते हैं, इनको कहते हैं फ्री स्पीच है. उसका हाल इन्होंने यूके में क्या देखा, मोहम्मद हिजाब वगैरह ने. ये पिछले 10 साल पहले ये काम छुप छुप के मस्जिदों में चुपके से करते थे. अब इन्होंने यूट्यूब पे खुली इजाजत. आप देखो जितनी ढील दोगे वो उतना चौड़ा होता जाएगा. यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल. तो ये वही काम ये करते रहे इतने अरसे से, जिसकी वजह से ये मुसलमान जो है चौड़ होते गए. इन्होंने एक्शन नहीं लिया. अब ये एक्शन, अगर ये इस तरह का एक्शन ले लेते हैं जो इतना मुश्किल नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा काम. ये बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा. यूके में मुश्किल है, यूके में करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने वहां पे 2-3 जनरेशन पैदा कर दी. ऑस्ट्रेलिया में पहली जनरेशन मुसलमानों की अब आ रही है सामने, जो 2000 में पैदा हुए, जो इस सेंचुरी में पैदा हुए. वो उससे पहले फर्स्ट जनरेशन के माइग्रेंट्स थे. जो फर्स्ट जनरेशन के माइग्रेंट थोड़े पता है बेचारे उनको अंग्रेजी नहीं आती, थोड़े डर के रहते हैं बेचारे, दब के रहते हैं. जो यहाँ के बॉर्न होते हैं
वो यहीं के एक्सेंट से बात करते हैं, वो यही तरह की उनको समझ आती है, तो इसलिए उनके एक तुझे मैं एक और प्रॉब्लम बताऊं, एक तो चलो इस्लामिस्ट प्रॉब्लम है ना, दूसरा है कि हमारे अपने इंडियंस का भी बड़ा प्रॉब्लम है, जो और लोगों का भी, इंडियंस नहीं सारे, जो और जो वोक इंडियंस भी यहाँ पे बहुत है, वो काले भी बहुत है, जो रेपरेशंस मांगते हैं, जो एबोरिजिनल्स के साथ जाके मिलके बैठ जाते हैं। अभी एक इंडियन का यंग यूथ क्लब यहाँ पे हुआ, उसने बनाया ब्राउन रेस क्लब ओनली, नो वाइट्स अलाउड। तो ये इस तरह की हरकतें, तुझे पता है यहाँ पे कोई बना सकता है ऐसा कि व्हाइट रेस क्लब ओनली व्हाइट पीपल? ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ये हमारे एक बात बताओ, उसको सिर्फ ब्राउन लोगों का रेस क्लब बना के उसने अपनी लाइफ में उखाड़ा क्या? नहीं कुछ नहीं, चपेड़ मार दिया ना गोरे को चपेड़ मार दिया कि तुमने हमें कॉलोनाइज किया, अब हम तुम्हारी बुंड मारेंगे। वो सारे ब्राउन चाहिए थे, तो आ जाओ वापस मेरे को। एग्जैक्टली यही तो, ये जो डिबेट है ना, तो ये मैं तुझे बता रहा हूँ, ये जो कल्चरल नेशनलिज्म की जो एक डिबेट चल गई है ना, ये सिर्फ मुसलमानों तक लिमिटेड नहीं है। अब देखो, अभी मैंने एक वीडियो चलाई थी, एक यूके का ही बॉर्न, वो प्रोफेसर है ह्यूमैनिटीज, तो पता पीएचडी, आजकल पीएचडी पता नहीं किस किस्म की पीएचडी हो रही हैं। तो बहरहाल वो प्रोफेसर है, इंडियन है, उसका अक्षय कुमार मेरा ख्याल उसका नाम है, अक्षय या लुक हिम अप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, उसका एक्सेंट भी थोड़ा मिक्स, मुझे थोड़ा अमेरिका का लगता है, थोड़ा ब्रिटिश लगता है, बट एनीवे, वो जूलिया हार्टली के साथ जीबी न्यूज टॉक न्यूज के ऊपर डिबेट कर रहा। आप यूके के सिटीजन हो, आप क्यों केस बना रहे हैं कि हमें जो स्लेव ट्रेड थी अमेरिका की, और उसमें जो जमैका वगैरह में जो लोग यूके ने लेके गए थे कैरेबियंस में, और जो इंडियन कॉलोनाइजेशन हुई थी, आप हमें उसकी रेपरेशंस दें। इफ यू मेक एन आर्ग्यूमेंट फॉर दैट, ठीक है, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, यू मेक दैट आर्ग्यूमेंट, ओके, दैट मेक्स सेंस, यू नो, ओके फाइन, योर लॉयल्टीज आर विद इंडिया। ओ यार, तुम तो यूके में बॉर्न हुए हो, तो जब वो गोरा देखता है, और जो होस्ट थी वो गोरी थी, जूलिया हार्टली, तो वो यूके को डिफेंड कर रही थी, वो बाने मारी थी, नहीं हमने ये नहीं किया, वो तो रॉयल्टी के पास ही थी, यू नो, ऑल दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट, और स्लेवरी अगर थी तो स्लेवरी खत्म भी हमने ब्रिटिश एम्पायर ने की वगैरह। द पॉइंट इज, शी वाज मेकिंग एन आर्गुमेंट फॉर द यूके, व्हिच मेक्स सेंस, योर लॉयल्टी शुड बी विद योर कंट्री। तो ये जो सेकंड जनरेशन जो वहां की बॉर्न है, जो वहां की पौध है, यार आप क्यों अपने पेरेंट्स के कल्चर मैं तेरे को परफेक्ट आंसर देता हूं इसका। इनफैक्ट दिस द वन आर्ग्यूमेंट दैट आई हैव नेवर फॉलन फॉर, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, इज दिस असिमिलेशन आर्ग्यूमेंट। दैट पर्सन जिसकी तू एग्जांपल दे रहा है, वो मोस्ट असिमिलेटेड है पैंचो। कैसे? वो तुम्हारे पढ़ाई के सिस्टम में गया, फुद्दू वोक एजुकेशन सिस्टम में, और वोक बना। वो उस वेस्टर्न सिस्टम का प्रोडक्ट है। वो पैंचो, वो तो बना, उसको बनाया उन्होंने, वो तो पीक एसिमिलेशन है। मेरे को यही तो ये बकवास है, एसिमिलेशन क्या? ओह, यू डोंट एसिमिलेट टू माय कल्चर, एसिमिलेट टू व्हाट? Who's going to define that? The fucking left or the fucking right? नहीं, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, जो आपके नॉर्म्स हैं, उसके अंदर तो आप रहेंगे। I don't give a fuck about Western traditions and norms. See, boss, I speak English. I don't break any laws, right? I follow the signal. I don't litter. I am a basic civic person. Beyond that, how I worship, whether I worship or not, whether I do this, whether I do that, the people can fuck off. I don't believe in this level of assimilation. कि मैं बैचो अपने आप को ही भूल जाऊं assimilate करने के चक्कर में। कल को बोल देंगे तेरी traditional dress, you are not merging. No, you're right. No, that's a good point. So that proves the point कि cultural assimilation or integration is next to impossible. It cannot happen, which gives rise to cultural nationalism। कि ये हमने जो experiment किया 1945 के बाद, कि डिफरेंट कल्चर के लोग आके हमारे अंदर इंटीग्रेट सिमुलेट हो जाए, वो नहीं होते। दे स्टे लॉयल टू द कल्चर ऑफ देयर पेरेंट्स। दे आर नॉट विलिंग टू असिमुलेट, दे आर नॉट विलिंग टू इंटीग्रेट, व्हिच मींस क्रिश्चियनिटी को असिमुलेट करो। No, Christianity, no, you're not, they're not making an argument for Christianity. No, I actually see myself as a very westernized man. मैं कोई ऐसा बड़क में नहीं बात बता रहा। I have some Western ideas, but I'm very Indian. No, but you don't. Yeah, but you're not expected to do that. You don't live in a Western country full time. तूने तो बताया, तूने तो पासपोर्ट भी नहीं उनका लिया। I am talking about those के जो उधर पैदा हुए हैं, जो इंडियन, वो
इंडिया के साथ ज्यादा लॉयल क्यों है एज अपोज्ड टू द कंट्री दैट ही इज बोर्न इनटू? No, but that's not how it is, boss. ये ऐसे है नहीं ना, होता है. क्यों नहीं होता ऐसे? Societies change every 20 years. If I was an हाँ, Indian born so- in the United States of America in 1960s, I was a different Indian. Then if I was an Indian who, because the orthodoxy of the Whatever. then United States of America was different. It was a more McCarthyan Republican leaning. So you know the 60s Indians and the 70s Indians are very, very Republican in I'm nature. not making that argument. I'm not, no, that totally आप सोसाइटी के अंदर जो In fact, सोसाइटी a woke Indian is an listen. assimilated Indian. No, listen to the point. नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं है. जो सोसाइटीज इवॉल्व करती हैं या डिवॉल्व करती हैं, they stay within the confines of that society, not necessarily. उसके अंदर लॉयल्टी का तो इशू नहीं ना आता. जो मैकार्थीज्म की जो आप बात कर रहे हो, जो उस वक्त की कोल्ड वॉर वर्सेस अमेरिकनिज्म जो था, that was उस वक्त का वो था, उस वक्त का जो गोरा था उसने वो करना था. लेकिन जो 2020 का जो गोरा होगा, जो 2020 का जो अमेरिकन होगा, वो है तो अमेरिकन ही ना. उसके अंदर ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड कि एक लेफ्ट का आर्गुमेंट है, एक राइट का आर्गुमेंट है. Is a white guy who says I believe in one world, globalism, and all of that, is that white person assimilated? नहीं, वो तो उनके उसको किधर भेजोगे? नहीं, वो नहीं, उधर ही रहेगा, लेकिन वो क्या उधर रहेगा? पैचो, अच्छा, वो बोले मैं ग्लोबल वर्ल्ड में मानता हूँ, वो उधर रहेगा, और हम पैचो सिर्फ हमारा स्किन कलर चेंज हो गया. No, but you're not, but this is not the reason. आप ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने इंडियन रेपरेशंस की बात कर रहे हैं. You're showing loyalty to your India. वो गोरा बेवकूफी है. नहीं दिखा रहा. वो जो वहां पैदा हुआ है, वो रेपरेशंस की बात कर रहा है, उसका मेरे को कोई लेना देना है. तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ. मगर assimilation overall is a bogus argument. I don't buy this assimilation argument at all. नहीं तो हो गया ना assimilate. अगर वो woke में जाता है, वो ठीक है. That wasn't the point. The argument that I was making कि जब आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, आपकी लॉयल्टीज तो उसी मुल्क के साथ रहेंगे ना. अब जो ग्रीन्स के जो सेनेटर्स हैं, वो उधर के वोक हैं, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे बिलीव करते हैं, ओपन बॉर्डर्स पे बिलीव करते हैं. that is an offshoot of their own society. That's perfectly fine. अगर कोई अब for example यूके की एक पॉलिटिशियन है ज़हरा सुल्ताना, she's a full on, उसका नाम मुसलमान है और थोड़ी सी मुसलमान, लेकिन वो but she supports the मुसलमानों वगैरह, she supports them from the white woke angle, जो woke socialist communist angle है, वो उस एंगल से उसको सपोर्ट करती है. So that's perfectly fine. That makes sense. But if she starts making an argument, if she starts putting Bangladesh first, where she wasn't even born, उसके पेरेंट्स वहां पे born हुए थे, then क्या गोरे को ये नहीं लगेगा कि यार ये तो हमने ये जो कल्चर के जो मल्टीकल्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो तो फेल हो गया. See, for example, there are many Americans, अमेरिका में भी ये reparations की बहुत एक active debate है. Blacks करते हैं. Yeah, and they also say should reparations be given to those countries also where these slaves came from. उसके ऊपर debate होती है. हाँ, वो इसलिए एक active debate होती है. But it's just that these debates happen in the confines of certain levels. मेरे को कोई पूछे तो मुझे reparations की argument में कोई point नहीं लगता अभी. People need to get over these things, and India in the last 10 years is the fastest growing economy in the world. तो मैंचुत क्यों जाके बात कर रहे हैं ये लोग, मतलब I don't understand all of that. But at the same time, जब कोई फुद्दू आके बोलेगा ना हमने तुमको सिविलाइज किया, तुम तो हमारे पहले भूखे नंगे थे, यार माचुद वाले वो गोरे भी, फिर वो दोनों ही फुद्दू. But they can make an argument ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वहां पे पहले, but that's not the point I'm making. हाँ तो यार इंडस्ट्रियलाइजेशन उधर हुई तो मैं क्या करूँ, गांड मरवा लूं. ये जो आर्गुमेंट है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता. ये तुम्हारी ईगो बात कर रही है ना, अब इसमें तुम्हारी ईगो में हम आ जाते हैं ना. अरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां हुई इसीलिए उन्होंने हमको कॉलोनाइज किया और इसीलिए हमारा फायदा हुआ, ये जो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट होती है ना, ये बुलशिट होती है. फॉर एग्जांपल, अमेरिका ने इंडिया को कॉलोनाइज नहीं किया है. मैं नहीं मानता अमेरिका ने इंडिया को कॉलोनाइज किया. अमेरिका की पीक लेवल टेक्नोलॉजीज आज इंडिया अडॉप्ट करता है, और इंडिया की बहुत सारी चीजें अमेरिका अडॉप्ट करता है. यू डोंट नीड टू कॉलोनाइज समवन to adapt to their practices. Human beings have been, like if you go back all the way 6,000 years ago, आपको मिस्र में इंडस वैली के टेक्नोलॉजी मिलेगी, एंड वाइस वर्सा आपको इंडस वैली में मिस्र की, इजिप्ट, फॉर दोज हु डोंट नो मिस्र क्या है, इजिप्शियन टेक्नोलॉजीज मिलेंगी.
तो क्या वो एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज तभी शेयर नहीं कर रहे थे? द फर्स्ट एग्जामिनेशन सिस्टम, द मोस्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो पूरे इतिहास में अगर किसी को आया है, वो चाइनीज ने बनाया है, वो किसी गोरे ने नहीं बनाया है. द चाइनीज केम अप विद द मोस्ट रोबस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस. आज सब लोग एग्जामिनेशन सिस्टम को यूज करते हैं चाइनीज का. चाइना ने किसी को इन्वेट नहीं किया उसके लिए. सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ब्रिटिश टू दैट यू हैव, हमारी इन्वेजन तुम्हारे लिए अच्छी थी, माँ चुद वाले वो लोग. No, I don't इन्वेजन think गंदी that's थी. that. No, I don't think they make that argument. They make अरे the वो करते argument. हैं, No, no, वो ये वो argument करते है. हैं. I understand the argument. Let me steelman the argument. The argument that they make is that because they became industrialized first, that enabled them to create a society where they could make robust military that could go out and colonize other countries. हमारे वहां पे, हमारे सबकॉन्टिनेंट में हम डिक्लाइन में थे उस वक्त, हम ऊपर नहीं जा रहे थे, हम डिक्लाइन में जा रहे थे. इसलिए हमारे पास वो हम आर्मी वो नहीं रख पा रहे थे जो गोरे का मुकाबला कर पाती. So there is no harm in accepting that. I don't see there's anything मैं तो wrong ये with भी that. बोलता हूँ कि ब्रिटिश वर far better Superior than at that time? the Mughals. Of Yeah, course. not only that, British were far better than the Mughals. जो मुगलों ने हमारी गांड मारी हो, किसी ने नहीं मारी है. अच्छा, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था. I want your opinion on that. I was thinking कि yes, गोरा आया, गोरे ने 100 साल, if you start from 1857 to 1947, that's about, उससे पहले, East India Company and Goa and Bengal, they put their foot first. Overall, give or take 150 years and on. Do you not think I mean, it's just an interesting thought experiment, कि अगर गोरा ना आया होता, then the modern India may have been a totally different story altogether. जो butterfly effect, if we put into consideration. Do you think अगर what गोरा kind of नहीं an आया India होता that would have था, been? गोरा नहीं आया होता था, हमारी डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन कैसे होती in the modern nation state में? मॉडर्न नेशन स्टेट में डेफिनेटली आज की डेट में उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं, क्योंकि इंडिया ये सबसे बड़ी गल में ये यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे ये कॉलोनियलिज्म है, क्योंकि बहुत सारे एंशिएंट रिकॉर्ड्स को पढ़ा नहीं जा रहा है. और मैं वोक आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई फकिंग हेट वोकिज्म, मगर ये जो एक अजम्पशन है ना कि जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊं, तुम्हारे को मेरे आइडियाज और मेरी चीजों का एक्सेस नहीं मिलेगा, ये बहुत बोगस सी आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं आती थी अगर अंग्रेज हमको रूल नहीं करता था. ऐसा कोई कारण नहीं है. इंडिया ने बहुत सारे गवर्नेंस सिस्टम्स को उसके पहले अडॉप्ट किया हुआ है, जो दूसरे देशों में जाके इंडियंस ने सीखा और दूसरे देश इंडिया में आके इंडिया से सीख के गए. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक ऑफ हाउ आइडियाज transferred between India and the Greeks. This is pre-Christianity की मैं बात कर रहा हूँ. It is called The Shape of Ancient Thought. बहुत मोटी बुक है, तो इसके पहले कि लोग मुझे गाली दें, 1000 पेज के ऊपर है, मगर it shows how ideas from India transferred to the Greeks, and the Greeks got so many governance ideas. Governance ideas, मेटाफिजिकल आइडियाज. इंडिया मेटाफिजिकली बहुत इन्फ्लुएंस करता था लोगों को, और बहुत सारे लोग पॉलिटिकल सिस्टम्स में इंडिया को इन्फ्लुएंस करते थे, और इंडिया बहुत इजीली लोगों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को अडॉप्ट भी कर लेता था अगर इट मेड सेंस फ्रॉम देम. दूसरा, अगर इंडिया और पर्शियन एम्पायर का इंटर रिलेशनशिप आदमी स्टडी करे, मैं कोई हिस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग बिट. मेरा इसमें सिर्फ पर्शियन एम्पायर में इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि वो आर्यन माइग्रेशन और ह्यूमन माइग्रेशन के सब्जेक्ट को मैं बहुत फैसिनेशन से पढ़ता हूँ, वहां पे भी है. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज इंडिया वुड हैव बीन अ डेमोक्रेसी मच फास्टर, और इंडिया वुड हैव बीन अ डेमोक्रेसी मच लेटर. बोथ आर इक्वली प्रोबेबल, but to say India would not have been a democracy is something I don't agree with, because 3-4 इंडिया इतना इस्लामिक नहीं होता. सबसे बड़ा impediment to Indian grow movement towards democracy is Islamism, because Islam and democracy are not compatible. While on the other hand, faith systems native to India, including atheism, which is native to India, people may not like to admit it, atheism literally stems from India at the most organized level, which now even Western scholars have accepted it. So all these systems were very, very much in sync with democracy. So would Indian systems have been exactly like them? No, but it would have been like, even जब हमने हमारी Constituent Assembly debates की,
every single democratic document of the world was considered before India adopted its own democratic document. We had a great debate on what other countries had at that time. And for your kindest information, India gave women a right to vote the day it became a democracy.